Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today I am going to teach you the exercises of chapter 5. First question is write some methods to prevent rusting of iron. As you know that rusting of iron means if iron change its color when it come in contact of moisture and air, oxygen. So orange color patches come on the iron. This is called rusting of iron. Now there are some methods given to prevent rusting of iron. Firstly, we can prevent rusting. Prevent means stop by painting, greasing or covering iron object with a layer of zinc metal. Three methods are given to you. First method by painting, second by applying grease, or in third method you can cover iron object with a zinc metal. Next is distinguish between physical and chemical change. It is clear from its name. Physical means in which no new substance is formed, and chemical means new substance with different property is formed. Example of physical change are tearing of paper. If you tear the paper, then nothing is new in this, so this is a physical change. Freezing of water, when you freeze water, this is also a type of physical change. Blowing of bulb is a physical change. Next is the chemical. Chemical means in which new substance with different properties formed. For example, cooking of food. When you cook the vegetable, then you cannot convert into raw vegetable again. So this is the chemical change. Burning of paper. If you burn the paper, then it will convert into ash. So this is a chemical change. Growth of plant. Once the plant grow, it doesn't come back to seedling. So this is also a chemical change. Next is, how can we say that grinding of sugar is a physical change? Grinding change its from crystal to powder form. As you know that sugar occurs in crystal form. शुगर किस फॉर्म में होती है बेटा? क्रिस्टल की फॉर्म में. बट जब आप इसको ग्राइंड करोगे देन ग्राइंडिंग कन्वर्ट इट इनटू पाउडर फॉर्म. एंड यू नो दैट कलर and taste of sugar is color is white and taste is sweet. तो कलर और जो इसका टेस्ट है वो सेम रहेगा. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन दिस केस. सो ग्राइंडिंग ऑफ शुगर इज़ अ फिजिकल चेंज. सो दिस इज़ द फिजिकल, क्योंकि कुछ भी नया नहीं मिल रहा. जब आप ग्राइंड करोगे तो ग्राइंड करने के बाद में इसका कलर जो है, टेस्ट जो है वो सेम रहेगा. You can write here taste in place of sweet. Write here taste. Taste remains same. Next is give two example of slow changes. Change of season and rusting of iron. Slow means which take a lot of time. सीज़न को चेंज होने में, आयरन को रस्ट लगने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगेगा. सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज. फास्ट मीन्स दैट अकर्स फास्टली. बर्निंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ एन एप्पल. आप एप्पल को कट करते तो उसकी कलर चेंज हो जाता है. एप्पल को बर्न करना. सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ फास्ट. जो फास्टली चेंज हो जाए, दैट मीन्स दीज आर फास्ट चेंजेस. नाउ कम टू एक्सरसाइज. फर्स्ट इज fill in the blanks. Open your book. Page number 79. First fill up is given to you. All irreversible changes bring a dash change in a substance. Irreversible change bring a permanent change. Permanent means irreverse का मतलब क्या होगा? वापस आप उसको बैक स्टेट में ना ला सको. दैट मीन्स वो पूरा completely चेंज हो जाए, परमानेंटली चेंज हो जाएगा. A change in which the substance produced can get back to the original form is called reversible. Reversible means in which substance produced can get back to original form. For example, आप आयरन को वाटर को मेल्ट करते हो. So this is example of reversible. बैंडिंग ऑफ आयरन रोड इज़ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल में आपको कुछ नया नहीं मिल रहा. आप आयरन को बैंड कर रहे हो, आप आयरन को मोड़ करके उसकी कुछ भी वायर्स को डिफरेंट शेप दे दो, बट आपको कुछ नया नहीं मिल रहा, रहेगा तो वो आयरन ही. दैट मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अ फास्ट केमिकल चेंज.
फ्यूल बड़ी जल्दी से बर्न कर जाता है, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो। जबकि रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज़ अ स्लो केमिकल चेंज, आयरन को डस्ट लगने में टाइम लगता है, सो दिस इज़ अ स्लो केमिकल चेंज। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ में। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फास्ट चेंज, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फास्टली आप बल्ब को ग्लो ऑन और ऑफ कर सकते हो। डिफॉरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट रिवर्सिबल एंड यू कैन से दिस इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जब आप ट्रीज़ को कट कर देते हो तो दोबारा ट्रीज़ को लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नियर अबाउट 15 ईयर्स। तो सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल बट स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ टेम्परेरी चेंज। पेपर को बर्न करते हो तो ये आपका टेम्परेरी चेंज होगा, नो दिस इज़ अ फॉल्स। पेपर को आपने बर्न किया तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, किसमें, पाउडर में। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ एन एप्पल इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल में जिसमें न्यू सब्सटेंस मिले आपको न्यू प्रॉपर्टी के साथ में, बट एप्पल तो एप्पल ही रहेगा, कुछ आपको न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा, सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। फ्रूट सैलेड केमिकल चेंज है, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स, क्योंकि फ्रूट की जब आप सैलेड बना रहे हो तो केमिकल का मतलब है कुछ आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ में, जिसका टेस्ट कलर चेंज हो जाएगा। तो सैलेड में जो भी आप फ्रूट यूज़ कर रहे हो तो उसका कलर वही रहेगा, टेस्ट सेम रहेगा, सो दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना इज़ अ फिजिकल चेंज, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि आपको कुछ नया मिल रहा है इसके अंदर। मिल्क लिक्विड फॉर्म में है बट कर्ड इज़ इन सेमी सॉलिड फॉर्म। मिल्क का टेस्ट स्वीट होगा और कर्ड का टेस्ट सोर, सो दिस इज़ अ फॉल्स। नाउ कम टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज फास्ट चेंज। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। सीड्स का जर्मिनेट करना, दिस इज़ ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस। सीड से फ्लावर फ्रूट बनने में बहुत टाइम लग जाता है। फूड को कुक करने में भी टाइम लगता है, बट क्रैकर्स को बर्न करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सो दिस इज़ अ फास्ट चेंज। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट बाकी ऑप्शन क्या गिवन थे, फास्ट, केमिकल, इरिवर्सिबल, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून, रिवर्सिबल मतलब आपको वापस वही मिल जाए। कैंडल को आप बर्न करोगे तो कैंडल का साइज स्मॉल हो जाएगा, दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल। चपाती को बेक करने के बाद आपको फिर से डो नहीं मिल सकता, दिस इज़ नॉट अ रिवर्सिबल। व्हीट ग्रेन को फ्लोर में जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो फ्लोर से वापस आपको व्हीट नहीं मिलते, सो दिस इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इन्फ्लेटिंग अ बलून। आप बलून को फुलाते हो फिर उसकी एयर को रिमूव कर दो, तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। विच वन ऑफ दीज इज़ इरिवर्सिबल, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। एक बार बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वापस हम बड़े से बच्चे नहीं बन सकते, सो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। अ पीस ऑफ पेपर अंडरगोज अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज़, पेपर को आप कट करो, फोल्ड करो या रीशेप करो तो उससे तो कुछ नया नहीं मिल रहा ना आपको, बट अगर आप पेपर को बर्न करोगे तो पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में। पर इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ बर्न। जब आप पेपर को जलाओगे, बर्न करोगे तो पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में। नाउ कम टू पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। Reversible change. Reversible means a change in which the substance can get back to the original form, like freezing of water. Next is the chemical. Chemical means in which new substance with different properties formed, like growth of plant या conversion of milk into curd. These are chemical change. Chemical means new substances formed, and reversible means in which substance can get back to the original form. Next is physical change. Physical means a change in which no new substance is formed. For example, melting of ice, जिसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलता। जैसे आप आइस को मेल्ट करोगे फिर वापस से फ्रीज कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट यू हैव टू कंपेयर और यू कैन से डिस्टिंग्विश, डिफरेंस बताना है आपको फास्ट एंड स्लो चेंज में। फास्ट मीन्स दैट टेक्स प्लेस इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
जो थोड़ा टाइम लेता है फास्टली होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग ऑफ बल्ब। स्लो चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे प्लांट को ग्रो करने में 15 ईयर्स 10 ईयर्स लगते हैं, सो दिस इज़ अ स्लो चेंज। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल मीन्स विच गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, for example freezing of water, evaporation. These are example of reversible change. And irreversible means in which substance doesn't come back to its original state. For example making curd from milk and getting older, एक बार आप बड़े हो जाते हो तो वापस चाइल्ड नहीं बन सकते, एंड मिल्क से कर्ड बनना, दिस इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज। State some of the irreversible biological changes that takes place in nature. Biological means जिसमें biochemical reactions होंगी, for example formation of biogas from cow dung. cow dung, cow waste से biogas का बनना, this is a irreversible and biological change. इसमें biochemical reaction हो रही है, biological का meaning समझ में आया, chemical changes होंगे, मतलब जब काउ डंग बायोगैस में कन्वर्ट होगा तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो काउ डंग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बायोगैस में। बर्निंग ऑफ फ्यूल, दिस इज ऑल्सो केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यू नो दैट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे, एंड दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, वापस कर्ड मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफ डो, डो को आप वापस व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। लास्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, मतलब एनर्जी जिसमें बाहर रिमूव होगी, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी जब आप बर्न करते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, तो एनर्जी हीट बाहर निकलती है ना, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी इज गिवन आउट। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें सब्सटेंस एनर्जी को लेगा, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट कैसे होगी, आइस क्या कर रही है, रूम टेम्परेचर से एनर्जी को लेकर के और मेल्ट हो जाएगी, तो इस केस में आइस ने क्या किया, एनर्जी को गेन किया। और बर्निंग ऑफ एलपीजी में क्या होगा, एनर्जी रिमूव होगी। सो दीज आर एग्जाम्पल इन विच energy is given out and in some cases energy is absorbed, that means we are taking energy and in some cases energy is released. For example you can take candle. So today your work is beta, you have to write and learn extra questions, exercise and part D. Okay, and have a nice day.